development of a school. By intense efforts and efforts have aided us to win laureate for the school. If you really want to enjoy this program, please ensure that your mobile phones are on silent mode. Give quality time to your children. I guess that this time is just for you and your children. So, you need to know that every child has worked so hard to make a beautiful presentation in the front of their parents. So, I request not just for your own child, but we need to hear thunder clap are coming for each and every act. I request for each and every act, I must hear love claps are coming. Thank you. Now that the moment has come, yes, the cultural program. So guys, our today's first performance is Welcome Song. This performance is presented by Annu, Sanvita, Pinky, Sneha. Our chief guest, Sri Gopal Saran sir, to express his views before all of us. Hello. Good morning, everyone. I would like to thank Mr. Raju Kumar, the school administration, for inviting me here. I would like to congratulate all the kids participating today. Let me talk about the importance of science in everyday life. It is the knowledge of machines, cars, hills, and factories which awaken us every day in the morning. The food we eat, the clothes we wear, the books and papers we read, the recreations we enjoy, the games we play, all have something or other to do with application of science. Every person is the effect of science in every affair of life. It is not merely the electric light or the electric fan, the radio or the cinema that displays the power of science in our daily life. But everything we do is done to some way or another connected with science. Wish you all a bright and prosperous future ahead. Thanks. Thank you so much, sir. I would like to call Srimati Janak Nandi ma'am to express her views before all of us. Give a big hands. Good morning, everyone. First of all, let me thank the Divine Valley International School for inviting us both on this precious occasion. Thank you very much, Divine Valley International School. Now, I would like to congratulate each and everyone who has participated in this, and nevertheless the parents who has taken such a lot of pain to bring their children here. The teachers who has taken so much of pain to bring up such a good and marvelous fabulous program. Thank you very much. Wishing you all the children, wishing you all the best for your future. May God bless you. Thank you very much. Thank you, ma'am. Now, I would like to call Sri Kumar Chandramoli sir to express his views before all of us. Thank you for giving me the chance to speak in front of talented students and guardians. I see a lot of champions here. We all are champions, I would say. But if you
judge a fish by its ability to climb up on a tree, it will spend its whole life that it is stupid. It means that अगर आप एक मछली को जज करोगे कि वो एक पेड़ पे चढ़ के दिखाएगा, वो पूरी ज़िंदगी ये सोच के बर्बाद कर देगा कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मैं पूरी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता. बट उसको स्विम करना सिखाओगे आप तो he can swim and he can be a champion, he can be genius. So I would say it's a responsibility of teacher and students. Speak up with your student, speak up with your teacher, and try to identify what you can do better. So I would say if I talk about myself, I wanted to be something else. I want to be something else, and I am something else. But I wanted to be a poet. But I'm a professional, and I'm a practical professional, I can say. But if I wanted to be a poet, and if I would have been a poet, then I can be genius in that area, So that is what I can say. And finally, say something about mother. This is a poem and which I like most and which is in my ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, ऐ अंधेरे देख ले तेरा मुंह काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया. इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, इस तरह वो मेरे गुनाहों को धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है. बुलंदियों का बड़े से बड़ा आसमान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा आसमान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तो आसमान छुआ. किसी को घर मिला हिस्से में या फिर दुकान आई, किसी को घर मिला हिस्से में या फिर दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में मेरी माँ आई. किसी दिन रोते हुए पोछे थे अपने आंसू, किसी दिन रोते हुए पोछे थे अपने आंसू, मुद्दतों माँ ने धोया नहीं दुपट्टा. मैंने कल शब चाहतों की सारी किताबें फाड़ दी, सिर्फ एक कागज के टुकड़े पे लफ्ज़ माँ रहने दिया. लास्ट नोटिस हो गई है पीठ पर बरसी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए. आज ये दीवार पर्दे की तरह हिलने लगी, शर्त ये थी कि यदि बुनियाद हिलनी चाहिए. तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. और सर आपने इतना बढ़िया कहा कि मैं मजबूर हो गया यहाँ आने के लिए कि जिस चेहरे को आपने छुआ महताब बना दिया, यानी चांद. जिस चेहरे को आपने छुआ महताब बना दिया, जिस तरफ नजर डाली बेताब बना दिया. ये तो हुनर है सर आपका कि पत्थरों को तराशा 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 और नायाब बना दिया. मेरी एक और कविता है, बहुत ही पसंद है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ. मुसलमान और हिंदू की जान, मुसलमान और हिंदू की जान, कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. मेरे पुरखों का हिंदुस्तान, न बांग्लादेश न पाकिस्तान, मेरी आशा मेरा अरमान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ. जहाँ के कृष्ण, जहाँ के कृष्ण, जहाँ के राम, जहाँ की शाम सरमई शाम, जहाँ की सुबह बनारस धाम, जहाँ भगवान करे स्नान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. वो मेरे पुरखों की जागीर लाहौर, वो मेरे पुरखों की जागीर कश्मीर, कराची और लाहौर कराची, लाहौर और कश्मीर. वो बिल्कुल शेर किसी तस्वीर, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ. वो झूठा शायर आशा कभी सिसकता चांद सुलगता रवि है, वो है उस मुद्रा में ऐसी छवि जो बना दे इंसान, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ. थैंक यू. I would like to call Abhishek Anand sir to express his view before all of us.
Good morning everyone present here. Thank you for inviting me over here. I am Abhishek and I work for Tata Consultancy Services, and it's been a delightful morning over here. I represent Atma both with Mrs. Janak Mandini Singh over here, and she already told you what we do. Special thanks to Mr. Raju Kumar and Mrs. Neeraj Tiwari. The school should further strive for the highest quality of education and give strength to all the students over here. Thank you so much. Thank you so much, sir. I would like to call our Rajiv sir to express his views before all of us. Give a big hand. हेलो, हाँ, आदरणीय हमारे अतिथिगण, निदेशक महोदय, प्राचार्य एवं शिक्षक कर्मचारीगण, आज डिवाइन वैली इंटरनेशनल स्कूल का स्थापना दिवस है। इस स्कूल और हम लोगों के इसके गार्जियनों के लिए बहुत ही सुखदायी दिन है। इतनी अच्छी पढ़ाई, और मैंने अभी शुरुआत में ही बच्चों की वंदना सुनकर मैं मुग्ध हो गया कि इतने कम समय में इतनी अच्छी पढ़ाई और इतनी अच्छे डिसिप्लिन में बच्चों ने सीख करके हम लोगों को इस चीज़ की जिज्ञासा थी कि यह स्कूल आगे बढ़े, और इसी जिज्ञासा से मैंने भी अपने बच्चों को यहाँ पर दाखिला दिया था। और मैंने इस चीज़ को पाया कि बच्चे का जिस तरह से पढ़ाई शुरू की गई है, उस बच्चे में काफ़ी डेवलप किया, और इतने कम समय अच्छी जानकारी, मात्र 5 साल के बच्चे को इतनी अच्छी जानकारी मिल जाना, ये स्कूल की गौरवान्वित की बात है। और हमें भी गौरवान्वित हो रहे हैं कि यहाँ के शिक्षक इतनी अच्छी पढ़ाई और इतनी अच्छा डिसिप्लिन बच्चों को दिया है, जो इसके लिए मैं आभारी हूँ। इसी के साथ मैं आपको Thank you so much, sir. I would like to call Sri Vijendra sir to express his view before all of us. आदरणीय डिवाइन वैली विद्यालय के प्रबंध निदेशक महोदय एवं विद्यालय परिवार के सभी समस्त शिक्षक एवं कर्मचारीगण, इस वार्षिक उत्सव में उपस्थित इस विद्यालय के सभी छात्र एवं अभिभावकगण, आज बहुत खुशी की बात है कि अपने डिवाइन वैली इंटरनेशनल स्कूल का यहाँ पर एक वार्षिक उत्सव आप सबके बीच में मनाया जा रहा है। हम सब जानते हैं कि वार्षिक उत्सव यानी वर्ष में एक ऐसा उत्सव करना जिसके माध्यम से हम अपने बच्चे के अंदर साल भर में जो शिक्षा देते हैं, उनके अंदर जो गुण का निर्माण करते हैं, समाज को यहाँ बुलाकर यानी उनके अभिभावकों को बुलाकर और अगल बगल में रहने वाले जो भी विद्यालय के शुभचिंतक ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, और विद्यार्थी अपने वर्ष भर में जो मेहनत करके जो यहाँ कुछ हासिल करते हैं, वो यहाँ प्रदर्शन करने का वो प्रयास करते हैं, जिसके माध्यम से आए हुए अभिभावकगण और उपस्थित जो भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं कुछ जानकारी हासिल करके जाते हैं, और विद्यालय के बारे में उनकी जो धारणा है नए रूप में विकसित होती है, और जाकर के अगल बगल पास पड़ोस के लोगों में इसकी चर्चा भी करते हैं कि मैं तो एक गया था विद्यालय में, हो सकता है कि उनका बच्चा यहाँ नहीं पढ़ने वाला हो। जाकर के वर्णन करते हैं, बताते हैं वहाँ के अनुशासन के बारे में, वहाँ के शिक्षकों के बारे में, वहाँ के जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनका जो व्यवहार है, यानी व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सब हमको मालूम है, हम सब जानते हैं। यानी शिक्षा यानी केवल अक्षर ज्ञान कर लेने से वो शिक्षा नहीं होती है। यानी जो व्यक्ति पढ़ लिख करके जिसके अंदर में थोड़ा सा भी संवेदनशीलता नहीं हो, शिक्षा कैसे? यानी हम ऐसी शिक्षा देने का प्रयास करते हैं कि पढ़ लिख करके अगर कोई व्यक्ति समाज के जिस क्षेत्र में भी जाए, वो समाज के बारे में, देश के बारे में चिंता करने वाला व्यक्ति बने।
आज देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे जगहों पर ऐसे संस्थान खड़े हो गए हैं, और समाज भी वैसा ही चाहता है कि हम अपने बच्चे को ऐसी शिक्षा दें कि पढ़ लिख कर को अधिक से अधिक पैसा कमाए। यानी समाज के अंदर में भी एक ऐसी धारणा बन गई है कि हम अपने लड़के को नोट छापने का मशीन बनाना चाहते हैं। तभी तो कहीं पास पड़ोस में चर्चाएं चलते रहती है। क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ, जाने का अवसर अधिक घरों में मिलता है। प्रत्येक दिन कोई ऐसा दिन नहीं कि जिस दिन मैं नए नए 10 घरों में नहीं जाता हूँ, पुराने घरों को छोड़कर। लेकिन बच्चा अगर 2 वर्ष का ही होता है तो बस आपस में एक ही चर्चा चलती है माता पिता के बीच में कि हाँ जी मेरा बच्चा तो अब 2 साल का होने वाला है, अगले वर्ष एडमिशन कराना होगा, नामांकन कराना होगा। कहाँ कराना चाहिए? यानी वहीं कराना चाहिए जहां से पढ़ करके अधिक से अधिक वो पैसा कमाए, मनुष्य बने। ये सोचने की प्रवृत्ति अब समाप्त हो गई। हम सबको मालूम है वियतनाम एक बहुत छोटा सा देश है। अमेरिका जैसे विशाल देश के साथ जब उसका 20 वर्षों तक लंबी युद्ध चली और वो छोटा सा देश वियतनाम